Welcome to SAL, aka Subjects Academy Learner. I'm your history and geography mentor, Pavanan Gowda. So today we are going to be doing obviously PYQs, some important PYQs and some other external competency based question that I have made for you guys to attend. You have already seen our question paper. I hope you solved it. You can send us through email or in Telegram, or even if you are in a WhatsApp group, you can send it to us. We will surely look into it, point out your mistakes, praise your good doings. Okay, you can send us and we will correct the paper and we'll send it back to you again personally. All right, so you can email us the answer sheets. Okay, hope you didn't cheat. So जब ये सिर्फ हम क्वेश्चंस लिखते जाएंगे, जस्ट द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स. ओके ओके, so the first question we have here is explain the concept of water scarcity. Water scarcity इसको explain करने का है, and its impact on human societies and ecosystem systems. Okay, इसको explain करना है. Explain the concept of, पहले explain लिख देता हूँ. ठीक है, explain करना है water scarcity क्या होता है और इसका impact जो है. CBSE में they will obviously ask the impact more than the definition. Like आपको पूछ सकते हैं 2 मार्क्स के लिए व्हाट आर द इम्पैक्ट्स ऑफ वाटर स्कैर्सिटी ऑन ह्यूमन सोसाइटीज और इवन द इकोसिस्टम, इकोलॉजी, ये सब आस्क कर सकते हैं आपको. दे वोंट गिव यू द स्ट्रेट काइंड ऑफ डेफिनेशंस लाइक वाटर स्कैर्सिटी एक्सप्लेन कर दो 2 मार्क्स मिल गए. नो, CBSE is not. CBSE is more complicated than you think. So they will ask you for the impact, the advantages. There is no advantages for water scarcity. They will ask you for the disadvantages. They will obviously ask for the 1 marks. All right. So let's do this. So water scarcity, water scarcity refers to the situation where the demand for water exceeds the available amount during a certain period, or when poor quality restricts its uses. See, water scarcity आपको पता ही होगा. So it's a situation जहाँ demand होगा water, like the demand for water exceeds, मतलब ये demand जो है पानी के लिए ये बहुत ज़्यादा हो जाएगा. Okay, where in that situation the water level or the availability of water is low. water का demand तो बहुत ज़्यादा है पर जो available amount है water वो कम है, उसको water scarcity बोलते हैं. Okay, obviously when if the demand for it exceeds, obviously it impacts on the human societies. जब demand ज़्यादा है human societies के, it obviously is like directly proportional to humans, right? If this the demand for water increases, some things will happen to humans and ecosystems. तो कुछ इफेक्ट तो होगा. सो क्या इफेक्ट होगा ये पूछ रहा है. सो वाटर स्कैर्सिटी हमने उनको एक्सप्लेन किया. अब जब एक्सप्लेन करते हो, थिंक दैट यू आर एक्सप्लेनिंग टू अ पर्सन who haven't even seen this concept or something. उनको पता ही नहीं वाटर स्कैर्सिटी क्या होती है. ठीक है, ऐसे समझाओ. लाइक वाटर स्कैर्सिटी ये सिचुएशन होता है जब डिमांड, जो पानी का डिमांड है वो बहुत ज़्यादा होता है और ये अवेलेबिलिटी का, जो पानी का अवेलेबिलिटी है वो कम है. ठीक है, ऐसा समझाओ आप. ठीक है, आप फिर सब पूरा लाइक सफिस्टिकेटेड वर्ड्स या फिर कुछ समझ में नहीं आने वाले शब्द यूज करने का तो it's no use. ठीक है, if you use all of those sophisticated words to explain your answer, it will be very complicated to understand. And yeah, that is not how you write an answer. You have to write the answer taki like the person who is reading your answer should understand everything that there is to know about water scarcity. All right, so चलो इम्पैक्ट पर लेते हैं. एक तो इम्पैक्ट है अफेक्टिंग
अफेक्टिंग ऑन एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर को अफेक्ट कर रहा है ये, ठीक है। और ये भी बहुत जब एग्रीकल्चर को इफेक्ट होगा, ये प्राइमरी सेक्टर है, आप इकोनॉमिक्स में पढ़े होंगे, प्राइमरी सेक्टर जो एग्रीकल्चर है उसको बैकबोन माना जाता है सभी इंडस्ट्री का। लाइक एग्रीकल्चर नहीं कुछ भी नहीं, ठीक है। एग्रीकल्चर या फिर माइनिंग, ये जब प्राइमरी एक्टिविटीज़ में ये सब होते रहते हैं, तब तो सेकेंडरी और टर्शरी इंडस्ट्रीज विल फॉल, right? So that's why it's very important. And jeopardizing public health. Okay, jeopardizing public health का मतलब है जो पानी ये साफ सुथरा स्वच्छ पानी नहीं मिलता तो हमारा हेल्थ का क्या होगा, ठीक है। jeopardizing का मतलब कुछ it means just sacrificing or something like that. Jeopardizing, you are putting something to kind of play but you're not sure it will survive or something, ठीक है। पब्लिक हेल्थ जो है, ये जब पब्लिक है, ये सिविल सॉरी ये पीपल जो है, पब्लिक या सोसाइटी, इसका क्या होगा, अच्छी खासी पानी नहीं मिली तो डिहाइड्रेशन से मर सकता है, या फिर पानी मिली वो साफ नहीं सुधरा नहीं है, कुछ प्यूरिफिकेशन नहीं हुआ है, उसमें भी कुछ ना कुछ तो बीमारियां होंगे, फंगस, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ये तो बहुत सारे बैड इफेक्ट्स तो लाएंगे ही लाएंगे। तो ये पब्लिक हेल्थ जो है, पब्लिक हेल्थ जो है वो कम होती जाएगी, ठीक है। मतलब द रेट्स ऑफ डेथ या फिर फीवर, ये सब तो इंक्रीज होगा, ठीक है। ओके, मोर ओवर इकोसिस्टम्स। ओके, हमने ह्यूमन सोसाइटीज़ के बारे में तो बात किया, इसको ही एक्सप्लेन कर दो 2-3 लाइन में, ठीक है। और इकोसिस्टम्स बात आएंगे। ओके, वाटर इज ऑब्वियसली रिलेटेड टू एक्वाटिक लाइफ। एक्वाटिक लाइफ, जब वाटर कम होता है तब ये फिशेस को रिप्रोड्यूस होने में या फिर प्लांट्स को ग्रो होने में ये अच्छा खासा मीडियम नहीं मिलता है इन लोगों को, ठीक है। इन फिशेस, ये मछली जो है, उनको अच्छा खासा मीडियम नहीं मिलता रिप्रोड्यूस करने के लिए या फिर कुछ अच्छी खासी जिंदगी जीने के लिए। साफ पानी नहीं, पानी होगा कम अवेलेबिलिटी में होगा, जब वाटर स्कैर्सिटी होगा तो हम ह्यूमंस जाकर ये कुछ पानी ले आएंगे बाल्टी में लाकर, या फिर वाटर होगा पर ये क्वालिटी ऑफ वाटर जो है वो अच्छा नहीं होगा, इससे भी वो मर सकता है। आपने देखा है, लाइक जस्ट रैंडमली समन थ्रू समथिंग इन द रिवर एंड ऑल ऑफ द फिशेस कम वॉशिंग टू द शोर, राइट। ये आपने देखा होगा कहीं पर भी, न्यूज़ पर या फिर फोन पर, हाँ, लाइक रैंडमली फिशेस आर डेड because all of the chemicals that we are dumping into the rivers, right? So ecosystem suffers as aquatic habitats degrade due to reduced water flows कम होगा, water scarcity जब होगा, like जो ecosystems या फिर human societies thrive नहीं हो रहा है, मतलब ये जी नहीं पा रहे हैं सही से, like water के साथ ही जी सकते हैं ना, पानी के बिना कैसे जी सकते हैं हम, ठीक है। हम पानी जब हम थ्राइव कर रहे होंगे उस सिचुएशन में, वहाँ पर वाटर स्कैर्सिटी नहीं होगा। जब हम थ्राइव नहीं कर पा रहे, जब हम जीना मुश्किल हो गया है, तब वाटर स्कैर्सिटी होगा, ठीक है। ओके, अडैप्टिंग वाटर मैनेजमेंट, और ये सोल्यूशन भी यू कैन राइट फॉर द 3 मार्क्स क्वेश्चन। 2 मार्क्स के लिए इतना काफ़ी है। इकोनॉमिक्स, एक्वाटिक हैबिटाट्स ये डिग्रेड हो जाएंगे जब वो वाटर फ्लो होगा, ये सब लिख सकते हो। सिर्फ ये 2 मार्क्स का ही तो क्वेश्चन है, पर आपको 3 मार्क्स को दे सकता है ये। फिर आप कैसे भी करके यू हैव टू काइंड ऑफ एंड क्या बोलते हैं यार, elongate the answer. ओके, चलो एक और क्वेश्चन। ऑल राइट, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज evaluate the importance of groundwater conservation and sustainable use practices. ओके, इसको पॉइंट्स में
चलो, evaluate the importance of conservation. Okay, so पहला है practices. क्या समझे? प्रैक्टिसेस. सो प्रैक्टिसेस जो करते हैं हम फिजिकली करते हैं, लाइक हम जो करते हैं वो इम्पैक्ट होगा ये इस ग्राउंड वाटर कंजर्वेशन में. हम क्या क्या कर सकते हैं? रिड्यूस वाटर विड्रॉल्स. वाटर विड्रॉल्स का मतलब जब हम पानी ले रहे हैं वो विड्रॉल है. विड्रॉल आपने बैंक में सुना होगा, ये इतना कैश इन्होंने विड्रॉ कर दिया है इस बैंक अकाउंट से. विड्रॉ का मतलब लेना. ठीक है, पहला है रिड्यूस water withdrawal, and the second is obviously efficient irrigation techniques. मतलब ये irrigation techniques है ना, ये सब बहुत वाटर कंज्यूम करते हैं. लाइक जो इनएफिशिएंट इरिगेशन सिस्टम्स होती है वो क्या होता है, लाइक बहुत सारी पानी को विड्रॉल कर ग्राउंड वाटर या फिर ग्राउंड वाटर से विड्रॉल कर पानी को इतना अमाउंट में यूज़ करते हैं, उनको पता ही नहीं ली कि ये डिप्लीट होगा, कुछ सालों में पानी ही नहीं होगा यहाँ पर, उनको पता नहीं ये. तो इसीलिए हम जो इरिगेशन सिस्टम्स है उसको इफ़िशिएंट बनाने चाहिए. ओके, सो आर्टिफिशियल रिचार्ज मेथड्स, सिर्फ AI लिख देते हैं. आर्टिफिशियल रिचार्ज मेथड्स मतलब ये रिचार्ज मतलब ये फिर से वाटर ग्राउंड वाटर लेवल है वो डिक्रीज होता जा रहा है, उसको आर्टिफिशियल तरीके से लाइक हम ही कुछ कर इंक्रीज करनी चाहिए. ठीक है, ये डिक्रीज होनी इंक्रीज करनी चाहिए. सो इवैल्यूएट का मतलब सिर्फ हम क्या क्या कर सकते हैं वो ही नहीं, ये इसका इंपॉर्टेंस क्या है. ग्राउंड वाटर इज वन ऑफ द मोस्ट बेस्ट काइंड्स ऑफ वाटर इफ यू लाइक प्यूरिफाइड, एंड इवन इफ यू डोंट प्यूरिफाइड इट इज स्टिल प्योर. Okay, ground water because like it goes through a lot of filtration levels. आपको पता ही होगा like when you see a basic kind of a filter like from old days, it's made out of like coal, some like dried out grass, gravel and some sand materials, and when you pass the water through comes clean water. यही तो है. और जब वाटर ट्रिंकल डाउन कर जाएगा नीचे लाइक ये यहाँ पर तो इतना साफ पानी भी यहाँ पर जाके साफ तो बन जाएगा. ठीक है, इसको हम जब निकालेंगे तब क्लीन वाटर ही तो मिलेगा हमें. सो ग्राउंड वाटर इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन इट कम्स टू ड्रिंकिंग और एग्रीकल्चर इरिगेशन पर्पसेस के लिए तो हम यूज ही करते हैं, और इंडस्ट्रीज के लिए भी. हम इंडस्ट्रीज के लिए अभी भी क्या करते हैं लाइक एक्सट्रैक्ट कर देते हैं. इंडस्ट्रीज आपको लोकेशन पता है, इंडस्ट्रीज जियोग्राफी में ही पढ़ाया होगा. जो ये मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज या फिर कुछ बड़े बड़े इंडस्ट्रीज के लिए क्या होगा आइडियल लोकेशन, जहाँ पर वाटर या फिर रॉ मटेरियल्स या फिर ह्यूमन कैपिटल ये सब जहाँ मिलता है वो ही ये आइडियल जगह होगा. इस आइडियल जगह में यहाँ पर बहुत सारी पानी की क्वांटिटी भी होगी. ओके, क्योंकि सिर्फ ये मैन्युफैक्चरिंग में ये यूज़ नहीं होगा, फिर भी ये ह्यूमन लेबर कुछ और कुछ के लिए पानी तो चाहिए ही चाहिए. ठीक है, इसीलिए जब ये चुनते हैं ये जगह को, ये वाटर भी होने जगह पे ही चुनते हैं, और जब ये करते हैं ये एक्सट्रैक्ट करते हैं ये सब करते हैं तो हो जाएगा. ओके, एंड देन मेजर्स लेनी चाहिए हमें जो कि कंट्रोल पोल्यूशन सोर्सेस, मेंटेन वाटर क्वालिटी. जब ये ग्राउंड वाटर क्वालिटी भी डिक्रीज हो जाएगा. ग्राउंड वाटर मैंने बोला है लाइक यू कैन टेक डायरेक्ट सिप फ्रॉम इट because that's so pure. The quality of that water is so pure. If you have gone to your villages or something like that, that is so pure, right? So next questions का चलो. The next question is, ये बहुत like competency based है. I love this question. I don't know why. I took it from a thing. Okay. Design a community-based water conservation project considering local needs, resources and challenges. ठीक है.
हमें क्या, ये एक प्रोजेक्ट जैसा समझो, ओके, यू कैन डू इट एज अ प्रोजेक्ट इफ यू लाइक, ठीक है। अब मत करना, बोर्ड एग्जाम आ रहा है तो पढ़ो इसीलिए। सो हाँ, डिज़ाइन कम्युनिटी बेस्ड प्रोजेक्ट वाटर लाइक कंजर्वेशन के लिए, जो कि गोल है वाटर कंजर्वेशन। और कंसिडर क्या क्या करना चाहिए, लोकल नीड्स को। एक मिनट, ये ओपन ही नहीं हो रहा है यार। हाँ चलो, ओके, क्या क्या करना चाहिए, लोकल नीड्स, ठीक है। ये जो रिसोर्सेज अवेलेबल है उसको भी कंसिडर करने, ये चैलेंजेस, ओके। चैलेंजेस जो है ये लोगों को समझाने में ये चैलेंजेस है यार, ओके। असेसमेंट, ये पहले आप क्या करते हो, प्रोजेक्ट जैसा समझो, कॉम्पिटेंसी बेस्ड है ये, ठीक है। फर्स्ट है असेसमेंट, ओके। फर्स्ट क्या करना है आपको, आइडेंटिफाई लोकल वाटर नीड। मैं जब कह देता हूँ पॉइंट्स में लिखो, असेसमेंट करना है, आइडेंटिफाई लोकल वाटर नीड्स, ठीक है। इनिशिएटिव्स, चलो। और एंगेजमेंट, एंगेजमेंट का मतलब नहीं शादी वादी नहीं बच्चा, कोलैब, मॉनिटरिंग, ओके। इनिशिएटिव का मतलब है, सी आपको इनिशिएटिव लेना होगा, लाइक यू हैव टू डू रेन वाटर हार्वेस्टिंग, वाटर एफिशिएंट फिक्चर्स। मतलब ये वाटर जो है हम कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, लाइक बहुत सारी पानी यूज़ करना। और क्या करना है, एजुकेशन बननी चाहिए, एजुकेशन ऑन वाटर सेविंग प्रैक्टिसेस। क्या बच्चों को आप सिखा सकते हो वाटर कैसे सेव कर सकते हैं आप, ये पानी इसको यूज़ कर कर कुछ धोने में यूज़ कर कर, प्यूरिफाई सिर्फ 2 फिल्ट्रेशन का आप ही बनाकर कोई कुछ फिल्टर कर कर आप फिर से पौधों को डाल सकते हो, ऐसा, ठीक है। आपको इनिशिएटिव लेकर ये सब करने होंगे। एंगेजमेंट का मतलब कम्युनिटी मेंबर्स, ये कम्युनिटी बेस्ड प्रोजेक्ट है बच्चा, दिस इज अ कम्युनिटी बेस्ड प्रोजेक्ट, सो यू नीड टू कोलैब विद द कम्युनिटी, विथ योर कम्युनिटी। सो एंगेजमेंट का मतलब है एंगेज होना। ये क्या यार, रुको, एंगेजमेंट का मतलब मैं समझा था, एंगेजमेंट का मतलब लाइक सोशल इंटरेक्शन होता है, नॉट योर एंगेजमेंट भाई का एंगेजमेंट है, ओके। सो एंगेजमेंट इन्वॉल्व्स कम्युनिटी मेंबर्स इन प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन। जब एक ही इंसान दुनिया को नहीं बदल सकता, इट्स ट्रू, राइट। सो एक और कोलैबोरेशन, सो कोलैबोरेशन का मतलब है ये एनजीओज या फिर लोकल अथॉरिटीज़ या फिर बिजनेसेस, ये क्या होते हैं, ये कोलैब कर सकते हो आप, ठीक है। व्हेन यू आर डूइंग गुड देयर आर ऑल्सो अदर पीपल डूइंग गुड, सो यू कैन जॉइन टुगेदर टू डू मोर गुड, ठीक है। नेक्स्ट इज मॉनिटरिंग एंड एवेल्युएशन। सी व्हेन यू डू समथिंग गुड यू हैव टू लुक ओवर इट, ठीक है। गॉड वॉज नॉट लाइक, ओ आई क्रिएटेड दिस गुड अर्थ एंड आई एम गोना गो एंड स्लीप, नो, नहीं, रेगुलरली चेक होती है ना। हमारे अर्थ भी गॉड से, हाँ, चेक करते हैं, बहुत सारे देवी देवताएं हैं, चेक करते हैं ये भी, ठीक है, ये सब चल रहा है या नहीं, कुछ बुरा अच्छा गलत क्या हो रहा है दुनिया में, हाँ, चेक करते हैं। कुछ अच्छा बनाकर हम चलते हैं। ये भी, इसमें भी कुछ लोग होंगे, हम ये नहीं करेंगे वो नहीं करेंगे, उनको समझाना है। तो when they give you a question like this, which is more likely less, but I wanted you guys to kind of feel that you're doing a project, ठीक है। I know it was a quick project, but जब आप ये हायर स्टडीज़ के लिए जाते हो, कुछ भी स्टडीज़ गए, you will come across projects like this. If you go for engineering purposes, because engineering में क्या होता है, they give you to design things, like या आप सिविल में हो या फिर मैकेनिक में हो, इलेक्ट्रॉनिक में हो, या फिर कुछ भी इंडस्ट्रीज, कुछ भी स्ट्रीम या फिर कुछ भी सेक्टर में जाओ इंजीनियरिंग में,
ऐसा तो प्रोजेक्ट मिलता ही है CS वालों को, कुछ कंप्यूटर सॉरी कुछ AI सा डिज़ाइन करो, या मैकेनिक वालों कुछ मशीन का डिज़ाइन करो, ये है, ये इन लोगों के लिए हेल्प करने चाहिए, ये है गोल इसमें, फार्मर्स या फिर कुछ ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम्स के लिए हेल्प हो, ऐसा। ठीक है, तो इवन whenever you go, like if you are doing for like a government job, even in the civil services or anything, they give you projects like this. I mean, you encounter projects like this on work. Engineering में क्या होता है, even if you don't work for an NGO or some companies who do this voluntarily, who take up these projects, you will get to do this to your like final sem wala project kind of thing, if based on the college you go to. पर if you do in like a जिला पंचायत या फिर ये सिविल, या फिर आप कुछ IAS हो, IPS बनना चाहते हो, इन सेक्टर्स में क्या होता है, you have to do projects like this because you have given a sector or like a confederation that you need to take care of. ठीक है, आपको दिया जाता है ये डिस्ट्रिक्ट के DC जो लोग होते हैं उनको दिया जाता है ये डिस्ट्रिक्ट जो है ये संभालो आप लोग। ठीक है, ये IAS वालों को भी एक विलेज या फिर एक तालुक जैसा होता है, या ये यहाँ पर कुछ लॉस, कुछ रेगुलेट करने के लिए भेजा जाता है उनको, लाइक टू लुक आफ्टर इट, नॉट टू मेक अ होल किंगडम एंड रूल इट, to look after it. They are just the administrative service, not anything. Okay, so ये projects बनाने के लिए you have to help. So that is it for water kind of water resources wala project. So we'll come up with map sessions. Thank you. Even in this video you will learn more about, like, we are only doing 3 chapters because only 3 chapters are very much important for the, even for the 1 marks, 2 marks, 3 marks, 5 marks and case based study. और सिर्फ 3 चैप्टर्स में ही 3 मार्क्स का मैप आने वाला है। ठीक है, चलो बाय बाय। आई मीन देयर इज मोर टू दिस वीडियो बट दिस सेशन एंड। ब्रेक लो, वीडियो को स्टॉप, लाइव को स्टॉप करो, कहीं पर भी मैं जाऊँगा नहीं, कुछ पानी पीकर या फिर एक वॉक लेकर आओ, एक और चैप्टर करते हैं। Welcome to the same video. Now we are going to be doing minerals and energy resources. Again, welcome to SAL, Subjects Academy learner. I am your history and geography mentor, Pavan N. Gowda. Alright, it's spelled PAVAN, not PAWVAN for some people. So moving forward, we'll be doing some Q&As, obviously. First of all, we'll start with, obviously we are going to start with our objective types. Okay, I did not do objective types for water resources because we can skip ahead बच्चों, like water resources में इतना खास सा objective types नहीं है, तो इसीलिए। okay, so see, in water resources there are certain topics that they can ask you about, but in minerals and energy resources और या फिर resources and development, objective types के क्वेश्चन बहुत अच्छे से आ सकते हैं, because ये इन चैप्टरों में क्या है, इंफॉर्मेशन ज्यादा दिया है पर कॉन्सेप्ट्स लर्निंग कम है। ओके, मतलब ये बॉक्साइट के बारे में दिया है, ये प्रॉब्लम्स कुछ ये फेस कर रहे हैं, ये इंफॉर्मेशन है, ये कॉन्सेप्ट नहीं है। जब आप समझोगे इसको तब वो कॉन्सेप्ट बनेगा, पर ये समझने वाली चीज़ तो नहीं है। ये बॉक्साइट ऐसा होता है, ऐसा पाया जाता है, ऐसा करते हैं इसको, ये प्रॉब्लम्स फेस होता है, ये सब। ठीक है, जब हम वाटर स्केर्सिटी या फिर ड्रॉट, ये सब इकोनॉमी, ये एक कॉन्सेप्ट जैसी चीज है जिसे हमें समझना पड़ेगा। ठीक है, ओके, मूविंग फॉरवर्ड। सो ऑब्जेक्टिव टाइप्स तो इसमें बहुत अच्छी से आ सकती है बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन। जब आप रिसोर्स डेवलपमेंट में देखोगे तब ये सैंड के बारे में कुछ फैंसी सा नंबर्स दिया हुआ है, और ये ऐसा होता है सॉइल, दिस इज वाई इट्स कॉल्ड ब्लैक सॉइल, ये ऐसा कलर का होता है, रेड और येलो सॉइल का क्या क्या उगा सकते हैं, प्रॉपर इरिगेशन है या नहीं,
ये सब पूछा जा सकता है, assertion and reasoning, ये क्या है, ये ऐसा है, क्यों सही है या गलत है, ट्रू और फॉल्स, सबको पूछ सकता है इसमें। पर ये वाटर रिसोर्सेज, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज या फिर फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ में भी ऑब्जेक्टिव टाइप्स के क्वेश्चन आ सकता है, पर फिर भी देंगे नहीं आपको। तो ये वाटर रिसोर्सेज और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज को बहुत वेटेज दिया गया है क्योंकि यहाँ पर कॉन्सेप्ट ज्यादा है। ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसको यू हैव टू लर्न इट, यू हैव टू काइंड ऑफ सी इट इन द वर्ल्ड, because they are kind of like real, that will affect you, right? If water scarcity in your locality, it will affect you. Manufacturing industry, it will affect you, right? So this is kind of a thing, okay? Why they have more weightage, why CBSE have given more question from this. So I spent 3 minutes explaining this to you. So moving on, so the first question is, which of the following is not a non-metallic mineral? चलो, non-metallic mineral which is not a non-metallic mineral. ऑप्शन दिया है इन लोगों ने, क्या है? कोल, जिप्सम, लाइमस्टोन एंड ये कौन सा है? बॉक्साइट दिया। इनमें से नॉन मेटालिक क्या है? या ये सभी तो मिनरल ही है, पर इनमें से नॉन मेटल को कैसे कोल कह सकते हैं, बिकॉज इट्स मेड आउट ऑफ कार्बन। जिप्सम हम बात करते हैं, ये कौन सा मेटल का सॉल्ट का ये है जिप्सम? ऑब्वियसली इट्स ऑफ कैल्शियम। एंड अब लाइमस्टोन की बात करें, ये भी है कैल्शियम का काइंड ऑफ अ थिंग है। और बॉक्साइट अल्यूमिनियम, राइट? ठीक है, तो कोल है। हम एरेज कर सकते हैं, ओके? इफ यू वांट टू राइट इट, यू कैन राइट इन योर नोटबुक, ओके? चलो, विच मिनरल इज यूज्ड एज अ फ्यूल इन न्यूक्लियर रिएक्टर्स? यूज्ड एज अ फ्यूल इन न्यूक्लियर रिएक्टर्स, ओके? चलो देखते हैं। टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, पहला है कोल, यूरेनियम, आयरन, लास्ट ऑप्शन है बॉक्साइट। ठीक है, आयरन तो यूज नहीं होता, बॉक्साइट तो एक और है, ये यूज नहीं कर सकते। कोल हम कब कौन सा ये पावर स्टेशन में यूज करता है? थर्मल पावर स्टेशन में। तो बचा है यूरेनियम, और यूरेनियम तो न्यूक्लियर यूरेनियम, एटम बॉम्ब यूरेनियम, ये सब यूरेनियम से ही काइंड ऑफ रिलेटेड है, पर एटम बॉम्ब में यूरेनियम को यूज नहीं किया था। तो हाँ, चलो, तो आंसर है यूरेनियम बच्चों, ठीक है? आंसर हो गया क्या? यूरेनियम, बिकॉज इट्स रेडियो एक्टिव। ये क्या होता है एटम बॉम्ब में, ये एक होता है, इसको कैसे रिएक्ट करने के लिए कह देते हैं, और ये क्या होता है, ये स्प्लिट होके एक चेन रिएक्शन सा बनाता है। लाइक माना कि ये दो एटम जैसी चीज बन गई, अपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, और इन दोनों ने रिएक्ट किया, और इसने ये दो चीज बनाई, इन दोनों ने किसी से रिएक्ट किया, इसने दो बनाई, इसने दो बनाई, ऐसे ही एक चेन रिएक्शन जैसा बन जाता है। यू कैन नॉट स्टॉप दिस रिएक्शन। दूसरे जो बॉम्ब होते हैं, इसमें फाइनाइट नंबर ऑफ रिएक्शंस होते हैं, इसीलिए ये बम फटकर रुक जाता है। पर ये यूरेनियम बॉम्ब्स में बहुत सारी चेन रिएक्शंस पैदा हो जाता है, इसीलिए ये बहुत डेंजरस सी चीज है। ऐसे चेन रिएक्शन बनकर क्या हो जाता है, ये कुछ कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स का चित्र लग रहा है यार, ठीक है? ये चेन रिएक्शन बनकर क्या हो जाता है, ये फट जाता है, इसीलिए लाइक यूरेनियम, प्लूटोनियम, रेडियम, ये सब रेडियो एक्टिव है, इसीलिए। और दे कैन ऑब्वियसली अफेक्ट योर kind of a thing, health and whatnot, right? So next is, which of the following is not a renewable source of energy?
क्वेश्चन दिया है, नॉट अ रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। चलो, रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी का मतलब क्या है? ये रिप्लेनिश हो सकता है, लाइक इवन इफ यू यूज लाइक एक्सेस अमाउंट ऑफ इट विल बी रिन्यूड, मतलब ये रुकता ही नहीं। ओके, अभी कभी तो कभी रुकेगा, पर ये रुकता ही नहीं। तो रिन्यूएबल, चलो, पहला है सोलार, यहां पर एनर्जी लिख लो। दूसरा है विंड। तीसरा है कोल, ये कोल तो बहुत सारी चीज में आ रहा है। एक है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी। चलो, आप टेक्निकल भाषा में बोलते हो तो कोल भी रिप्लेनिश हो सकता है, रिन्यूएबल काइंड ऑफ अ सोर्स है, पर ये एक मिलियंस ऑफ ईयर्स लगता है। आपने पढ़ा होगा केमिस्ट्री, कार्बोनेट्स कंपाउंड्स में कोल और पेट्रोलियम जब प्रेशर में, कुछ प्रेशर में या फिर यहाँ पर होते हैं, डिक किया जाता है। और अब दुनिया में फाइनाइट अमाउंट ऑफ कोल और पेट्रोलियम है। ओके, पर कोल को फॉर्मेशन होने में बहुत सारे मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं यार। तो इसीलिए हम कोल को एक रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी नहीं मानते। कोल बहुत सारी चीज़ों में यूज़ करते हैं, मतलब जब आप थर्मल पावर स्टेशन में यूज़ करते हो कोल को इलेक्ट्रिसिटी करने के लिए, अपने फिजिक्स में पढ़ा होगा ये। सोशल यार, क्या है सोशल? ठीक है। सो विच टाइप ऑफ कोल हैज़ द हाइएस्ट कार्बन कंटेंट? सो ये आपको लगता है नहीं होगा, पर ये कौन सा टाइप का कोल है विच हैज हायर कार्बन कंटेंट? चलो, आपको क्या करना है, ये क्वेश्चन तो 2 लाइन की है चीज है यार, यहां पर बना दिया मैंने, एक लाइन भी नहीं हुआ ये। ठीक है, ऑप्शन दिया है आप लोगों के लिए, लेजिनाटाई, एंड बी है बिटमिनस, सी है एंथ्रासाइट, डी है पीट। कौन सा हुआ? एंथ्रासाइट हुआ बच्चों, क्योंकि इट्स क्लियरली गिवन। ठीक है, चलो, ये कोल, कोल सिर्फ कार्बन से ही नहीं बना, सिर्फ कार्बन का कंपाउंड नहीं है कोल। कोल में बहुत सारे मिक्सचर्स होते हैं, लाइक ऑक्सीजन इज ऑल्सो रिक्वायर्ड टू मेक कोल, राइट? और प्रेशर या हीट, और कुछ ये जब आप एक लंप ऑफ कोल देखते हैं, इसमें सिर्फ कार्बन 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 नहीं होता। ठीक है, जब ये एंथ्रासाइट में पाया जाता है, इसमें कम अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन और सारा कार्बन 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 कार्बन। ठीक है, चलो, इसीलिए ये कार्बन कंटेंट, जिसमें कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कार्बन, जब हम कॉन्सेंट्रेशन के बारे में बात करते हैं, ये एक काइंड ऑफ अ रूम है। कॉन्सेंट्रेशन आपको समझाता हूं। ठीक है, ये एक रूम है और इसमें से हम सिर्फ ऑक्सीजन भर दिए, ऑक्सीजन भर दिया हमने। ठीक है, भर देते हैं बच्चों, और हमने कुछ हाइड्रोजन को लिया और स्कैटर कर दिया, स्कैटर कर दिया। हम जब ये कुछ एक बॉर्डर जैसी चीज बनाते हैं यार। ठीक है, चलो, जूम किया हमने और कुछ मीटर स्क्वायर लिया, ये कुछ मीटर स्क्वायर है। ठीक है, इसको हम बाउंड्री बनाकर ले लेते हैं। इसमें ये हाइड्रोजन जो एक ब्लू ग्रीन जैसी चीज में हमने बनाए, कुछ हाइड्रोजन और भी लगा देते यार, कम हो गए। ठीक है, हाँ, यहाँ पर ऑक्सीजन मात्रा जब देखते हैं, यहाँ पर तो बहुत ज्यादा है। ओके, ये कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा ऑक्सीजन है, पर हम जब यहाँ पर देखते हैं इस छोटी सी थिंग में, यहाँ पर तो इक्वल अमाउंट ऑफ थिंग है। देखो, यहाँ पर तो इक्वल अमाउंट ऑफ
ऑक्सीजन भी है ज्यादा और हाइड्रोजन भी है ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन। ये है कॉन्सेंट्रेशन। हम जब एक मीटर स्क्वायर क्यूब कुछ, ये एक वॉल्यूम जैसी चीज होती है ना, या फिर सरफेस एरिया मीटर स्क्वायर और मीटर क्यूब और सेंटीमीटर स्क्वायर मिलीमीटर, कुछ भी यार, कुछ भी मेजरमेंट आप पढ़ते हो मैथ्स में, मैथ्स हम नहीं करेंगे अब, करके बहुत पक गया हूँ लाइफ जिंदगी में मैथ्स कर कर, ठीक है। मतलब मैथ्स करो, तो कुछ कुछ छोड़ दो मैथ्स करना, ठीक है। सोशल भी करो यार, सोशल इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, राइट। चलो, ओके, द नेक्स्ट इज विल डू वन मोर क्वेश्चन एंड देन we'll move on to subjective types. The next is, which energy resources is produced from decomposition of organic matter over millions of years? Which source of energy, energy source पूछ रहा है, energy resource जो बनता है, ये जो एक एक्स वाली, मैं मैथ्स क्यों कर रहे हैं, ये एक्स जी, चलो मान लेते हैं ये एक एनर्जी रिसोर्स, आप मैथ्स करेंगे, हम मैथ्स जैसे चीज, ओके। सो एनर्जी रिसोर्सेज है जो ये एक्स मान लेते हैं, ये एक्स के बारे में दिया है इन लोगों ने, है ये क्या दिया है इन लोगों ने, ये एक्स जब ये एनर्जी रिसोर्सेज बनता है, ये एक्स जैसी चीज है, ये जो एक्स है वो इसको एनर्जी रिसोर्सेज में बनने में मिलियंस ऑफ ईयर्स लगता है, टाइम दिया है इन लोगों ने, चलो मिलियंस ऑफ ईयर्स लगता है, ओके। और ये क्या होता है, मतलब सिनेरियो दिया है, सिचुएशन दिया है, क्या सिचुएशन है इसमें, डिकम्पोजिशन क्या डिकम्पोज होता है, लाइक मतलब एक वेरिएबल एक्स बनने में वाई को डिकम्पोज होता है। यहां पर वाई क्या है, वाई दिया है ऑर्गेनिक मैटर कंपाउंड कुछ भी, ओके। तो इन सबको हम एक फॉर्मूला में लगाते हैं, टाइम प्लस ये सिनेरियो जो है डिकम्पोजिशन प्लस ऑर्गेनिक मैटर, ये इक्वल टू एक्स है। सो वेरिएबल टाइम तो मिलियन, ये हम ये मैथ्स कर दिया, इक्वल्स टू एक्स लगा दिया, और ये कर दिया इक्वल्स टू एक्स लगा दिया, और क्या हो गया ये, हाँ क्या हो गया है ये, पेट्रोलियम इक्वल्स टू एक्स हो गया। चलो, क्योंकि पेट्रोलियम एक ऑप्शन में था, ऑड वन आउट हमने पिक किया और मैथ्स भी कर लिया हमने। ये क्या है, ये वाई या एक्स, आई डोंट नो व्हाट आई एम डूइंग गाइस, बट वी आर हैविंग फन। तो लाफ दैट सोशल सर इज डूइंग एक्स वाई जेड, वो कुछ भी मैथ्स वाला करवाता है, ओके। सो द ऑप्शंस आर ये नेचुरल गैस जो है CH4 लिख देता हूँ, मीथेन या कुछ भी, मीथेन, ब्यूटेन, एथेन, हाँ नेचुरल गैस आप समझ, और पेट्रोलियम मतलब क्रूड ऑयल या फिर कुछ भी, बायोमास मतलब कुछ कंपाउंड, और ये विंड एनर्जी, विंग एनर्जी लिख दिया है, विंड एनर्जी, ठीक है। सो क्या होता है पेट्रोलियम, इनमें से तो डिकम्पोज ओवर मिलियन ईयर्स ऑफ टाइम पे सिर्फ पेट्रोलियम ही होता है यार, ठीक है। अब चलो क्या करते हैं हम, कुछ काइंड ऑफ subjective types करते हैं। So the question 1 is, explain the significance of minerals in the development of nation's economy. So चलो एक मिनट, ओके, हाँ चलो, फर्स्ट इज एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ मिनरल्स इन द डेवलपमेंट ऑफ नेशंस इकोनॉमी। तो आपको पता होगा मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज, मिनरल्स आर काइंड ऑफ रिलेटेड टू मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, राइट, ओके। ये बात हम काइंड ऑफ ध्यान में रखते हैं जब ये हम क्वेश्चन अटेंड कर रहे हैं। सो पॉइंट्स में देखा जाता है, ब्लू पेन यूज करता हूँ। चलो आंसर दे दिया, ठीक है, पॉइंट्स में आप इंट्रो लिख दो यार, आप इंट्रो कुछ भी, वनट्रो, आउट्रो भी लिख दो, ठीक है। ओके, फर्स्ट इज मिनरल्स हैज रॉ मटेरियल्स
materials for various industries such as manufacturing, such as I told you, manufacturing, construction and energy production. ठीक है, ये पॉइंट आ गया आपको. नेक्स्ट है, दे आर क्रूशियल फॉर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स लाइक स्टील, सीमेंट एंड इलेक्ट्रॉनिक्स विच आर एसेंशियल फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट. चलो, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हम 1960s में देखते हैं. 1960s में इतना टेक्नोलॉजी नहीं था, कम्युनिकेशंस नहीं था, या फिर इलेक्ट्रॉनिक कुछ वगैरह वगैरह, ट्रांसपोर्टेशन, कॉमर्स, एग्रीकल्चर, ये सब कुछ फीका फीका सा लग रहा था. जब ये टेक्नोलॉजी आया ये 21st सेंचुरी में, लाइक 2010s, हम समझ रहे थे, तब ये कुछ डेवलपमेंट होने लगा. तब क्या हुआ, अब तो इंडिया की जीडीपी तो लाइक 3 ट्रिलियन है ना. सो इट्स अ रियली गुड थिंग. ठीक है, ओके. सो ये क्या करते हैं, ये जीडीपी की एक कंट्री जो है उनके लिए कंट्रीब्यूट करते हैं. ये बहुत सारी ट्रेड लाते हैं ये. और क्या होता है, टेक्नोलॉजी, हम आपने सोचा होगा, एक रीजन दिया था लोगों ने, मतलब साइंटिस्ट या फिर कुछ इंडस्ट्रियलिस्ट भैया बहन भैया जी ने, कि इसरो ये सब क्यों करता है, क्योंकि ये अपना टेक्नोलॉजी दर्शा रहा है. तब ये टेक्नोलॉजी दर्शाएगा, तब ये फॉरेन कंट्रीज जो है वो हमारे टेक्नोलॉजी या फिर हमारे में इन्वेस्ट करना चाहते हैं. तो इसीलिए ये सब वो कर रहे हैं. और ये बहुत सारी इंपॉर्टेंट रिसर्च के लिए भी है, और आगे जाकर फ्यूचर में जाकर मदद कर सकती है ये एक ह्यूमन काइंड को बचाने में, या फिर कोई भी स्पीशीज या फिर अर्थ को ही बचाने में. ठीक है, कुछ भी हो सकता है. इसीलिए सो दीज टेक्नोलॉजीज दे आर वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन इट कम्स टू नेशनल डेवलपमेंट. ठीक है, सो crucial for the production of goods like स्टील. ये स्टील, सीमेंट, ये क्या कौन सी चीज है, ये बहुत सारी बिल्डिंग ब्लॉक्स है इकोनॉमिक का. ठीक है, अब सीमेंट या फिर ये कुछ वगैरह वगैरह स्टील से, ये क्या है, ये कौन सी काइंड ऑफ इंडस्ट्रीज में आते हैं, बेसिक और की इंडस्ट्रीज में. कंज्यूमर इंडस्ट्रीज नहीं, बेसिक और की इंडस्ट्री में, क्योंकि ये काइंड ऑफ फाउंडेशन बनाती है सभी के लिए, है ना. So the next is the mining sector creates employment opportunity and stimulates investment in infrastructure, further driving economic development. Sorry, jobs increased and TIES opportunities also increased. ठीक है, so the next question is evaluate the impact of mining activities on the environment and local communities. ठीक है, अब हम कुछ डीमेरिट्स के बारे में भी बात करते हैं. ये माइनिंग चीज़ है. सो मैं सिर्फ क्या है पॉइंट्स बताना चाहता हूँ, आप लिख लो, कुछ भी करो, सुनो, सिर्फ सुनो. ठीक है, लिखो मत. 1 मिनट, मैं पानी पी लेता हूँ, बहुत सारी घास सूख रहा है. ओके, मुझे उम्मीद है आपने भी ब्रेक लिया होगा. ठीक है, सो द थिंग इज द फर्स्ट काइंड ऑफ ओके, ये क्या है, इवेल्युएट द इम्पैक्ट ऑफ माइनिंग एक्टिविटीज. इम्पैक्ट पूछे जा रहा है किसका, माइनिंग एक्टिविटीज का ऑन एनवायरमेंट और लोकल्स पे. ठीक है, द फर्स्ट इज माइनिंग एक्टिविटीज कैन लीड टू डिफॉरेस्टेशन, सॉइल एरोशन, हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, कॉजिंग लॉन्ग टर्म एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, एनवायरमेंटल डैमेज. ये सब क्या होता है, माइनिंग जब शुरू करते ही एक प्लॉट ऑफ लैंड होता है, इसमें आप ये क्या पहला फाइंड आउट करते हैं, और यहाँ पर ये जो पेड़ पौधे थे इस सभी को हटाया जाता है. ओके, हटा दिया सभी को. उसमें क्या खोदना शुरू करते हैं, एक क्वारी जैसा बनाते हैं, नीचे 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 नीचे
यहाँ पर गड्ढा छोड़ देते हैं और ये क्या होता है, डिफॉरेस्टेशन हो गया और ये सॉइल एरोशन हो गया, ठीक है। दिस कैन लीड अप टू हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, ये अब ये पेड़ पौधे ये सब का काटा, ये जीव जंतु यहाँ से मिट गए, है ना, ठीक है। द नेक्स्ट इज पोल्यूशन ऑफ वेयर वाटर एंड सॉइल। ये जब माइनिंग करते हैं, माइनिंग के बाद क्या होता है, ये ओर जैसी फॉर्म होती है, यहाँ पर ये गैस पार्टिकल्स, ये सब जो आपने पढ़ा होगा मेटल के जो एक्सट्रैक्शन में, ओर की जो एक्सट्रैक्शन, ओर की रिफाइनिंग या फिर कुछ भी आपने पढ़ा होगा कि यहाँ पर एक रिफाइनिंग या फिर पहला एक प्रोसेस होता है लाइक क्लीनिंग द ओर और समथिंग लाइक दैट, रिमूविंग ऑल ऑफ द पार्टिकल्स। दिस रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ वाटर, बहुत सारी पानी पड़ता है और ये बहुत सारी स्मोक प्रोड्यूस होता है। और एक्सट्रैक्शन में भी आप जब रोस्टिंग कैल्सिंग कुछ भी वगैरह वगैरह करते हो, ये बर्न करते हो, ये सब करते हो, जब ये बहुत सारी पोल्यूशन प्रोड्यूस करता है, तो ये सब रीजन आप लिख सकते हो। सो द नेक्स्ट इज डिस्कस द चैलेंजेस फेस्ड इन द एक्सट्रैक्शन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ मिनरल रिसोर्सेज इन इंडिया। चैलेंजेस के बारे में पूछा जा रहा है। Challenges, okay, faced is extraction utilization. The first is outdated mining techniques. Outdated mining techniques, बहुत सारी वाटर यूज कर रहे हैं या फिर बहुत सारी स्मोक, ये कुछ फिल्टर वगैरह कुछ नहीं कर रहे, ये सब है आउटडेटेड टेक्निक्स। ये फार्मर्स जो लाइक आप बहुत सी रूरल जगह में जाते हो विच इज़ नॉट इवन इन द कॉन्टेक्ट ऑफ सम थिंग, और ये आदिवासीज या फिर ट्राइबल पीपल के पास जब जाते हो आपको समझ में आता है ये बहुत सारी आउटडेटेड चीज़ यूज़ करते हैं ये फार्मिंग के लिए, ठीक है, इसीलिए। So the next is regulatory complexities and bureaucratic hurdles often delay mining projects and deter investments in the sector. Bureaucratic का मतलब ये not elected, just the chosen body of kind of a thing. जब क्या एक पार्लियामेंट ने ये बिल पास कर रहे हैं, ये कौन सा बिल है यार, ये एग्जाम में चीटिंग नहीं कर सकते आप, चीटिंग करोगे या फिर पेपर लीक करोगे या कुछ फाइन लगा सकते, या यहाँ पर क्या होगा, ये एक कमिटी बनाएगी, ब्यूरोक्रेटिक काइंड ऑफ अ काउंसिल, ठीक है। ये क्या होगा, सिर्फ इन लोगों ने कुछ लॉयर्स या फिर कुछ डिबेट वालों या फिर लोकसभा राज्यसभा मेंबर्स को डाला गया उस कमीशन या फिर कमेटी में, और ये क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, डिबेट करेंगे, या ये ठीक है या 10 लाख चार्ज करना, 1 करोड़ चार्ज करना ठीक है या नहीं, ये करते हैं इन लोगों ने, ठीक है। तो इसीलिए ओके, तो ये है ब्यूरोक्रेटिक। सो ये क्या होता है, ये ब्यूरोक्रेटिक, ये क्या करते हैं, यहाँ पर माइनिंग नहीं हो सकती, ये नहीं हो सकता, ये बहुत अच्छे से कर लेंगे, इसीलिए हम नहीं तोड़ेंगे, ये हिंडर करता है, ये क्या है, माइनिंग एक्टिविटीज को, ठीक है। ये सब क्या करते हैं, ये बहुत सारी हिंडर करते हैं, हडल्स बनाते हैं, डिलेज बनाते हैं। आपको पता है ये गवर्नमेंट की लाइक ठीक है, और आपको पता ही है गवर्नमेंट क्या काइंड ऑफ लाइक गवर्नमेंट से एक बिल पास होना या फिर कुछ होना, एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क, इट्स वेरी टाइम कंज्यूमिंग, और ये होता है, ठीक है। एनवायरमेंटल कंसर्न सच एज लैंड डिग्रेडेशन, आपने बताया होगा, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन या कुछ भी हो, बहुत सारी चैलेंजेस फेस करती है ये माइनिंग में। और एक और है इश्यूज लाइक लीगल माइनिंग, लैंड एक्विजिशन डिस्प्यूट्स, ये भी बहुत सारी डिले काइंड ऑफ प्रेजेंस करती है, ठीक है। दिस इज अबाउट योर चैप्टर माइनिंग एंड एनर्जी रिसोर्सेस। आई होप यू एंजॉयड दिस काइंड ऑफ अ सेशन। नाउ टेक अ ब्रेक, come back, we will like stop the live guys, just do it, okay? So stop the live, take a break, drink some water, tea, coffee, whatever the time it is, whatever it suits you. Even if you are watching this in at 2 a.m. in the morning, go take a walk or do something like kind of chill, okay? So take care, okay? Meet you in like 5 minutes, I guess. And welcome to SAL, Subjects Academy Learner. So I hope you're all having a good break. You had a good break, right? So we'll get into another important chapter, that is manufacturing industries. ठीक है, चलो कर लेते हैं। पहले हम करने, I don't know why I'm speaking this accent, but I like it.
सो चलो, हाँ, पहला क्वेश्चन है, दिस वाज आस्क्ड एज अ डाउट, not this question, I'll do it later. Which of the following is not a raw material used in the manufacturing of paper? मैंने बोला था इन जो चैप्टर्स में जो क्वेश्चंस आते हैं ये बहुत सारी डिटेल्ड वे में आती है. Like you only know what is used in the manufacturing of paper if you have studied about the manufacturing of paper, like in the paper industries or whatever. Okay, चलो, हाँ, ऑप्शंस है वुड, कॉटन, बैम्बू एंड स्ट्रॉ. Obviously, जो wood है, you make paper, and even from bamboo, like in olden days you used to make paper, and even in straw is a kind of a fiber, so you obviously used to make paper. So इन तीनों से पेपर बन जाता है, ठीक है. जो नहीं, इनमें से नहीं बनता वो है बी, कॉटन, ठीक है. और दूसरा क्वेश्चन, विच इंडस्ट्री इज नोन हैज सनराइज इंडस्ट्री इन इंडिया? पहला है सनराइज इंडस्ट्री का मतलब है, सनराइज का मतलब क्या है? अ न्यू स्टार्ट, और ये कुछ शुरू हो रहा है नया, नए से. ओके, इट्स अ ब्रांड न्यू डे, अ ब्रांड न्यू सन रेज, या सनराइज इंडस्ट्री मतलब ये ग्रो हो रहा है अभी, सनराइज हो रहा है ये अभी, ठीक है. दिस इज व्हाट इट मीन्स. तो पहला है टेक्सटाइल. टेक्सटाइल तो नहीं हो सकता, बिकॉज टेक्सटाइल आपको पता है ये सदियों से यहाँ पर है, लाइक खादी या फिर मसलिन क्लॉथ्स या फिर कुछ भी आप देखते हो, लाइक इवन इन लाइक मिडीवल इंडिया, अर्ली periods of India, we had a lot of textiles and whatnot, right? So textile couldn't be an option. Option B is information technology industry, IT industry. Okay, चलो, IT industry हो सकता है because even in the 21st century IT actually developed, because like cities like Bangalore, Mumbai, and even like smaller cities, if you you're in your state, if you have noticed, the technology has been growing a lot since the 21st century, since the dawn of the 21st century. So IT industry. और options को देख सकते हैं, ठीक है. The another is automobile. Since the British came, automobile industry has been going on because they all kind of introduced all of the cars and whatnot, and even foreign influence had a lot of crew in it. So automobile industries, majorly India doesn't actually own like that many car brands, but like we have we manufacture more cars than any other thing combined, because we have raw materials, we have the technology, we don't have the capital, because these car companies are mostly like multinational corporations where like other countries, other people from countries like invest in here. So yeah, and the last option, D option, is steel. Steel industry, you know, there has been like a Tata Industries, like you studied in class 10th, in class 8th in history, that these Jamshed Tata, they all created this industry that was like mainly located in like iron concentration wala thing. He found these farmers going and getting iron ore, they started melting it, and he started to kind of use it for like commercial purpose. They gave it to the British Empire when the First World War broke down. So you know, steel industry has been in India. So ये नहीं हो सकता, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री नहीं हो सकता. तो करेक्ट ऑप्शन ये IT industries. Okay, got the answer to this question, guys. The next question, the process of changing raw materials into finished goods is called, obviously इसका आंसर है manufacturing. The next is, which of the following is traditional handicraft industries? ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री में, ट्रेडिश का मतलब ये सालों सदियों से करके आ रहे हैं ये लोग, ठीक है. तो दैट इज ट्रेडिशनल. हैंडीक्राफ्ट का मतलब ये कुछ टेक्नोलॉजी या फिर कुछ नहीं यूज करते, ये हम हाथ से ही बैठ के कर सकते हैं, ठीक है. सो द फर्स्ट ऑप्शन इज शिप बिल्डिंग. ऑप्शन ए शिप बिल्डिंग,
कंस्ट्रक्शन या फिर कह सकते हैं. ऑप्शन बी इज ग्लास ब्लोइंग. मतलब ग्लास को, ये जो मॉल्टन ग्लास है, आपने यूट्यूब या फिर इंस्टा या फिर कुछ सोशल मीडिया या फिर फेसबुक कुछ में भी किसी प्लेटफॉर्म में भी देखा होगा. ये ग्लास को लाइक ऐसा हॉट मोल्टन जैसा लगता है और इसको ब्लो कर या फिर कुछ शेप देते हैं पॉट जैसा. हाँ. सो और द नेक्स्ट इज स्टील मैन्युफैक्चरिंग. स्टील manufacturing, and the next option is electronics assembly. ये ही सिर्फ इंडिया में होता है. मतलब ये इलेक्ट्रॉनिक असेंबली जो है लाइक टोयोटा या फिर ये कंपनीज जो है यहाँ पर ही असाइन काइंड ऑफ असेंबल करते हैं ये कार्स और ये सब को. ठीक है. और ये शिप बिल्डिंग नहीं हो सकता बिकॉज यू कैन नॉट डू इट विद हैंड. यू नीड क्रेन्स, यू नीड बिग काइंड ऑफ मशीनरी टू लिफ्ट ऑल ऑफ द वेटेज थिंग्स एंड वॉट नॉट. ग्लास बॉलिंग हो सकता है, सॉरी हो नहीं सकता, हो सकता है. और स्टील मैन्युफैक्चरिंग यू नीड अ लॉट ऑफ लाइक मटेरियल्स लाइक कंटेनर्स, यू नीड लाइक मशीनरी टू प्रोसेस ऑल ऑफ द थिंग्स. सो स्टील इंडस्ट्रीज नहीं हो सकता. इलेक्ट्रॉनिक असेंबली में जो इंडिया में होता है, इट्स नॉट डन बाय हैंड. इफ यू ऑब्जर्व नाउ, इट्स नॉट डन बाय हैंड, इट्स डन बाय लाइक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाला मशीनरी और मशीन दैट आर ऑर्डर टू डू थिंग्स. बिकॉज लाइक दिस कार पार्ट विल बी देयर, इट विल यूज दिस कार पार्ट टू मेक अ कार थिंगी और वट एवर द थिंग दैट आई एम ड्रॉइंग राइट नाउ. ये हाँ. सो ये असेंबल करता है. इसमें इस मिडल में ये चीज़ कार बनने में कोई ह्यूमन इंटरफेरेंस तो नहीं होता. यहाँ पर ह्यूमन इंटरफेरेंस नहीं होता, तो इसीलिए असेंबली, सो इट्स नॉट हैंडीक्राफ्ट. ठीक है. अब जो है ओके. सो द नेक्स्ट इज विच इंडस्ट्री इज नोन हैज Footloose Industries because it can be set up in any location as it not dependent on any specific raw material or resources. ठीक है. A है iron and steel industry. B ये तो हो नहीं सकता बिकॉज आयरन इंडस्ट्री और स्टील इंडस्ट्रीज बनाने में आपको ये कार्बन चाहिए, आयरन चाहिए, कुछ और मटेरियल्स चाहिए. और ये एक लोकेशन, ये जो आइडियल लोकेशन जैसा एक फिगर दिया था ना इन लोगों ने, सिर्फ यहाँ पर ही लोकेट हो सकता है ये एक जगह में. ओके. आइडियल लोकेशन याद करो. ओके. हाँ. दूसरा है टेक्सटाइल इंडस्ट्री. ये भी नहीं हो सकता बिकॉज टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए ये एक मार्केट चाहिए. पहली बात रॉ मटेरियल्स चाहिए और दूसरी बात लेबरर्स वर्कर्स रॉ मटेरियल्स हमें बोलना है लाइक इलेक्ट्रिसिटी टेक्नोलॉजी एंड इवन क्या चाहिए उनको, मार्केट भी चाहिए टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए. बिकॉज यू हैव सीन लाइक खादी, ये सब ट्रेडिशनल हैंड वुवन क्लॉथ्स आर गेटिंग लाइक लेस year onwards because like there is no market because people think they are expensive and what not to, and some people may not like it. So वो है market. वो नहीं होता तो प्रोडक्शन कर नहीं सकते. ये प्रोडक्शन करेंगे भी ये लॉस होगा. सी हैड IT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री. एंड द नेक्स्ट इज सीमेंट तो हो नहीं सकता बिकॉज सीमेंट के लिए आपको क्या चाहिए, लाइमस्टोन या फिर कुछ और मिनरल्स वगैरह वगैरह चाहिए. ठीक है. इसीलिए चाहिए ये. ओके. सो उसके बाद के लिए ये सीमेंट इंडस्ट्री जो है वो क्या है, एक पिन डाउन लोकेशन में ही हो सकता है. ओके. बिकॉज यू नीड वाटर, यू नीड टेक्नोलॉजी फॉर द मैन्युफैक्चरिंग, यू नीड लेबरर्स. सो द करेक्ट ऑप्शन इज IT इंडस्ट्रीज बिकॉज लाइक IT के लिए तो आप कहीं पर भी मूव कर सकते हैं. यू कैन वर्क इवन इफ यू आर स्टेइंग इन हिमाचल प्रदेश और यू कैन ऑल्सो वर्क इन एन IT कंपनी इफ यू आर एट होम और वट एवर लाइक दैट. ठीक है. सो वी हैव डन द ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस. नाउ वी विल डू द सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन. सो as I said, I would be coming up with some what is that, subjective type questions.
Alright, so the first question we have here is discuss the impact of. ये क्या कर रहे हैं, डिस्कस कहने के लिए कर रहे हैं. डिस्कस जब बोलते हैं सभी इंफॉर्मेशन डाल दो, आपको कुछ क्या पता है सभी डाल दो. डिस्कस जब करने के लिए कहते हैं, बिकॉज व्हेन यू आर हैविंग अ डिबेट, व्हेन यू आर डिस्कसिंग विद योर फ्रेंड और यू आर टेलिंग समवन, यू डिस्कस एवरीथिंग दैट देयर इज टू दैट टॉपिक. ओके, और डिस्कस किसके ऊपर, मतलब क्या करने के लिए, इम्पैक्ट के लिए. और द नेक्स्ट इज इम्पैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स ऑन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर. इम्पैक्ट किसके ऊपर, टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट ऑन द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर. मतलब ये सेकंड सेक्टर जो है उसके ऊपर क्या कर रहे हैं, इम्पैक्ट. ठीक है, टू अटेंड टू अ मैसेज, सॉरी. ओके, हाँ, आंसर पढ़ देता हूँ जो मैंने दिया है. सो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स हैव रेवोल्यूशनाइज्ड द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इन न्यूमरस वेज. ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग जब हम बोलते हैं, पहले इंडिया में क्या था, मैन्युफैक्चरिंग जब हम बोलते हैं, लाइक इट वाज लाइक हैंडीक्राफ्ट्स, और घर में बैठने लाइक पॉटरी बना देते हैं, या फिर कुछ खादी वीव कर देते हैं, वुल, या फिर कुछ ना कुछ तो कर देते हैं लाइक घर में बैठ कर. पर ये क्या बोल रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, जब ये टेक्नोलॉजी आया लाइक इन द लेट 18th, let's say, to Britain, and it got introduced in the early 19th century to what is that, all of Europe, and it came to in the late 19th century to obviously India, right? The British and Portuguese, some people introduced, as you have read in like history and stuff, and these people introduced all of these kinds of technology, which obviously helped us a lot, because like now after British introduced like textile kind of a thing, artificial textiles and whatnot, and how clothes or silks or fabrics or things can be made like very easily using machineries without any human interference or something like that. That kind of revolutionized, because like now you can afford the clothes, because like जब आप hand weave करते हो तब जो cost है human labor को pay करना होता है, ये सब बहुत ज़्यादा होता जाता है, because like that's why designer clothes और ये जो branded कपड़े होते हैं, that's why they are so expensive, because they are actually made by someone like hand. ओके, इसीलिए वो उनके जो कॉस्ट है और ये ब्रांडिंग वगैरह वगैरह करने में लाइक कॉस्ट हो जाता है कुछ थाउजेंड्स में. ठीक है, ओके. सो ये क्या हुआ, टेक्नोलॉजी जब आई, इट हैड अ लॉट ऑफ इम्पैक्ट ऑन मैन्युफैक्चरिंग. पहला, technology is very important when we say manufacturing industries nowadays, because without technology we cannot achieve that what we are doing. Okay, technology ने ही हमें आगे बढ़ाया, we can say that, because it has revolutionized everything. So you can kind of expand that, and overall technological advancement have transformed the manufacturing sector into more efficient, flexible and innovative industry. Because ये मैन्युफैक्चरिंग जब आए या फिर टेक्नोलॉजी जब आए, बहुत सारी इन्वेंशंस बनने लगे दैट मेड लाइक लाइव्स ईजियर, बिकॉज लाइक थिंग्स चीपर या समथिंग. बिकॉज इन दिस वर्ल्ड लाइक जब हम इस रेट में जी रहे हैं, इन्फ्लेशन तो बहुत ज़्यादा है. इन्फ्लेशन का मतलब ये जो प्राइस है, नॉर्मल प्राइसेस, ये बढ़ जाना लाइक ड्रास्टिकली. लाइक ये अनियंस का प्राइस तो 20 रुपीज़ पर के जी था, या फिर 30 रुपीज़ पर के जी था. एक समय में क्या हो गया, 100 रुपये हो गया 1 kg. अब तो 100 रुपये के लिए 3 kg आ रहे हैं. और टमेटो भी 40 था या फिर 20 था, कुछ दिन 10 हो गया, 10 रुपये के जी हो गया. और कुछ दिन 100 रुपये के लिए सिर्फ आधा kg ऐसा हो जाता है. ये है इन्फ्लेशन, जब चीज़ कम है और डिमांड उसका ज़्यादा है. ओके, इन्फ्लेशन. ठीक है, नेक्स्ट. अब यू डोंट नीड टू लर्न ऑल ऑफ दिस. ठीक है, ओके. सो द नेक्स्ट इज
एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ वैल्यू एडिशन इन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर विद सूटेबल एग्जाम्पल्स। चलो अब क्या है वैल्यू एडिशन। तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में हम वैल्यू एडिशन जब बोलते हैं, सी आई हैव सम कॉटन, मेरे पास कुछ कॉटन सी ये कुछ कुछ है, ठीक है, और मैं इसे बेचता हूँ। ओके, आई सेल इट। क्या दाम में? 1 kg है ये कुछ 1 kg 2 kg मान लो। ओके, 1 kg का ये जो कॉटन है उसको बेच कितने का? 100 रुपये, 100 रुपये kg। ओके, 2 kg है, 200 रुपये में बेच देता हूँ। चलो हो गया ना सेल। चलो अब एक बंदा आता है जो मेरे से ये 200 रुपये के लिए खरीदता है। 200 रुपये के लिए इन्होंने खरीद दिया जो कॉटन था, और उसको क्या किया? मैन्युफैक्चर किया। उसको क्या बनाया? एक लाइक काइंड ऑफ अ थ्रेड जैसा बनाया। थ्रेड ये बनाया। अब ये मैं सिर्फ हाइपोथेटिकली बोल रहा हूँ, ये दाम तो बहुत कम है एक काइंड ऑफ अ थ्रेड थिंग का, और ये क्या हो गया? ये 300 हो जाएगा। और इसने कितने किए पता नहीं, चलो इनफाइनाइट नंबर कह लो। और किसी ने ये जो सॉरी ये क्या है यार? ओके हाँ, ये जो थ्रेड का बंडल है, थ्रेड्स का बंडल है, इसको लेकर उन्होंने क्या किया? उसको बेच दिया दूसरे बंदे ने तीसरे बंदे को। कितने दाम के लिए? 300 पर। हाँ चलो, ये बड़े समझ लो, ठीक है, because 1 kg of cotton is really kind of like big, because like cotton is like heavy, sorry light, और 1 kg बनाने के लिए बहुत सारी कॉटन चाहिए। ओके सो ये बड़े समझो, 2 बेच दिया, 300 600 हो गया। और किसी और ने ये लिया और क्या बनाया? कपड़े बनाए। ओके, ही मेड लाइक अ कपड़ा। क्या बनाया इसने? कपड़ा बनाया। ओके हाँ चलो, इसने क्या बनाया? ये डिज़ाइनर सा कुछ बनाया इसने, ठीक है, ये डिज़ाइन ये बनाया। ये कितने का बेचेगा? इसके लिए बेचेगा। दो प्रॉफिट देखो आप। ओके, प्रॉफिट तो ज़्यादा होगा ना, एक डबल हो गया प्रॉफिट। सो ये है वैल्यू एडिशन। आपको एक प्रैक्टिकल चीज़ देकर मैं समझाना चाहता था ये वैल्यू एडिशन क्या होती है। ओके सो ये है था सूटेबल एग्जांपल। इन्होंने भी कॉटन उसके लिए ही दिया है। तो ये जो प्रोसेस था ये है वैल्यू एडिशन। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज सिर्फ यही करता है। ये जो रॉ मटेरियल्स था कॉटन, इसको इन्होंने क्या कर दिया? 100 रुपये से लेकर एक क्या है ये वॉट एवर द थिंग दैट आई एम ड्रॉइंग हियर, इसको फाइनल में कितने के लिए भेजा था उन्होंने? हाँ, 100 रुपये का 100 रुपये था और 1200 बना दिया, है ना। सो इसीलिए ये है वैल्यू एडिशन। ओके, बोलते हैं ये क्या करते हैं? मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज का काम बस यही है, ठीक है, वैल्यू एडिशन करना। ठीक है, तो मैंने आपको समझा दिया। सो द नेक्स्ट इज, चलो एक और करते हैं, डिस्क्राइब द रोल ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज इन प्रमोटिंग इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इन अ कंट्री। ओके चलो भाई, अब मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन, मल्टी MNCs के बारे में बोलते हैं। ओके चलो, अब I'm getting up right now because I want to kind of teach it. तो हाँ, क्या है ये मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस और कैसे गवर्नमेंट ये रोल प्ले करता है जिसमें इंडस्ट्रियल या फिर पॉलिसीज बनाने में जो प्रमोट करते हैं इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कंट्री। सो आंसर पढ़ लेते हैं। गवर्नमेंट पॉलिसीज प्ले अ क्रूशियल रोल इन प्रमोटिंग इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बाय क्रिएटिंग अ
कंडक्टिव एनवायरनमेंट फॉर इन्वेस्टमेंट, इनोवेशन एंड ग्रोथ। ये जो गवर्नमेंट है ये एनकरेज करती है, बिकॉज लाइक गवर्नमेंट जो है अपनी कंट्री के लिए, मतलब ये जो गवर्नमेंट, ये मोदी जी का जो गवर्नमेंट एग्जांपल दे रहा हूँ, ओके ठीक है, सिर्फ एग्जांपल, ये मोदी जी का गवर्नमेंट क्या है ये, या फिर मोदी जी ही क्या चाहते हैं, अपनी देश की डेवलपमेंट हो। जब अपनी देश की डेवलपमेंट होती है तब सभी का डेवलपमेंट होता है ना, ओके, बिकॉज लाइक इट्स काइंड ऑफ प्रोपोर्शनल, बिकॉज लाइक सभी का डेवलपमेंट नहीं होता, ओके, एक देश की जीडीपी बनाने में, लाइक हमारे इंडिया का जीडीपी क्या 3-4 ट्रिलियन हो गया, पर सभी डेवलप नहीं है। There are also people living in slums and what not, so they are all not developed. So ये क्या है, so एक kind of proportional create करता है development of the country, development of the people, okay, country का development जब होता है people का भी development होता है, okay, ये है kind of a relation, but ये सभी kind of a thing में सच नहीं है, तो इसीलिए हाँ चलो, ये जब गवर्नमेंट चाहता है देश की काइंड ऑफ ग्रोथ हो, जीडीपी ज़्यादा हो, जीएनपी एक स्टेट का ज़्यादा हो, तो क्या करते हैं, ये पॉलिसीज बनाते हैं, लाइक यू कैन मेक दिस इंडस्ट्री लाइक दिस एंड गवर्नमेंट विल ऑल्सो इन्वेस्ट, गवर्नमेंट विल गिव सब्सिडीज इफ यू डू लाइक अ फैक्ट्री लाइक दिस, है ना। So these policies may include tax incentives, subsidies, infrastructure, subsidies, infrastructure development, trade regulations and labor laws. Okay, चलो I have to explain something. हाँ ठीक है, ये सब्सिडीज देता है और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, ट्रेड रेगुलेशंस और ये लेबर, ये जो लॉस है गवर्नमेंट करता है, ये काइंड ऑफ इजी करता है लोगों को क्या है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज बनानी। ये लेबरर्स को क्या होता है प्राइजेस इंक्रीज करना, तो लेबरर्स भी वर्क करते हैं, वो प्राइजेस 200 रुपये घंटे का, या फिर दिन, सॉरी घंटे का नहीं, एक दिन का, एक डे का क्या हो गया, डे का हो गया 200 रुपये दे रहे हैं लोगों ने काम करने के लिए। और क्या है सब्सिडीज़, और एक बंदा होगा लाइक मेरे पास इतना सारा काइंड ऑफ पैसा नहीं है, तो गवर्नमेंट ये लो 1 करोड़ या फिर 50 लाख, और एक काइंड ऑफ इंडस्ट्री बनाओ या फिर कुछ बनाओ जो आपको प्रॉफिट हो, 50 में से 25 लाख मुझे दो और 25 लाख आप रख लो, ऐसा होता है सब्सिडीज, ओके। सो गवर्नमेंट ऑल्सो फॉर्मुलेट्स इंडस्ट्रियल पॉलिसीज टू प्रमोट स्पेसिफिक सेक्टर्स। ये स्पेसिफिक सेक्टर्स जो होता है लाइक स्टील इंडस्ट्रीज या फिर ये कुछ होता है ना, गवर्नमेंट ही एक्सेस दे रही कि ये प्लॉट लो और ये आप लो, और इसमें जो है ये इंडस्ट्रियल आप डेवलप करो या फिर कुछ एक्सट्रैक्ट करो और माइन करो, लाइक रिफाइन करो, कुछ करो, प्यूरिफिकेशन ऑफ द मेटल, यार कुछ भी करो यार, पर इनमें से 50% मुझे चाहिए, बिकॉज गवर्नमेंट हमने क्या किया, आपको लैंड प्रोवाइड किया, आपने सिर्फ ये मशीनरी कुछ यूज़ कर इनमें से एक्सट्रैक्ट किया, इनमें से जो है 50% गवर्नमेंट की और 50% क्या है प्राइवेट की। तो ये होता है लाइक पॉलिसीज़ या फिर कुछ सेक्टर्स को मदद करना, या फिर एग्रीकल्चरल सेक्टर्स में भी यही होता है, क्यों, बिकॉज इफ़ अ फार्मर लाइक एक किसान है और ये ग्रो किया किसान ने, और गवर्नमेंट आएगी, ये जो स्कीम्स है अंत्योदय और ये अन्नभाग्य, लेकिन कर्नाटका इन मेनी अदर स्टेट्स है, एक स्टेट गवर्नमेंट ही आती है या फिर सेंट्रल, आई डोंट नो, ये गवर्नमेंट चीज़ आती है और ये इनमें से 50% ये गवर्नमेंट ही खरीद देती है। किसकी, गवर्नमेंट ने ही सेट किया था ना, 1 kg राइस का इतना रुपये डैश रुपये, इनमें ही आधा ये खरीदी, और कुछ भी किसान कितना बेच रहे, 1 kg बेच रहे, 1 kg भी खरीदेगी गवर्नमेंट, और इसको क्या करेंगी, रिजर्व्स में डालेंगी। रिजर्व्स का मतलब है ये स्टॉक्स या फिर कुछ बना के रखा होगा ना गवर्नमेंट ने, क्योंकि लाइक कुछ एपिडेमिक्स या फिर यहाँ पर एक फ्लड हो गया, तो इसीलिए इस लोगों के लिए राइस चाहिए, कुछ वीट चाहिए या फिर बाजरा कुछ चाहिए, तो गवर्नमेंट ही प्रोवाइड करनी चाहिए, गवर्नमेंट ही प्रोवाइड करेंगी, तो इसीलिए ठीक है। एडिशनली गवर्नमेंट में फैसिलिटेट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स FDI, मतलब बाय लिबरलाइजिंग ट्रेड पॉलिसी। लिबरलाइजेशन आपने पढ़ा होगा हिस्ट्री में, मैंने ही सिखाया है। लिबरलाइजेशन क्या है, लाइक ये टैक्स, कम्युनिकेशन,
ये सब बैरियर्स, ड्यूटीज, ड्यूज, ये सब आप जो कस्टम्स पे करते हो ना, इसको जब हटा दिया जाए तब लिबरलाइजेशन होगा. बिकॉज लाइक बिफोर लिबरलाइजेशन नहीं था, अभी भी काइंड ऑफ नहीं है, बिकॉज यू हैव टू पे some tax if you are bringing a stuff from that country to this country, है ना. तो इसीलिए तो ओवरऑल proactive government policies are essential for fostering a thriving industrial sector and driving economic growth. तो इसीलिए this is how a government plays a very important role in developing policies or promoting industrial development in a country. So that is it for all the chapters in geography. I hope you write your social exam. I know it's kind of on 7th March for the CBSE लोग. CBSE बच्चों के लिए 7 मार्च के लिए है सोशल साइंस का एग्ज़ाम. आई विश यू नथिंग बट द बेस्ट. ठीक है, nothing but the best. I hope you write your exam very well. So thank you for watching. If you like this video, if you like this live video, please like and comment what you liked about this, and comment down below any kind of a question. And please, we have given you question papers, 2 question papers from SST. Please attend them. प्लीज़ ट्रायल एक टाइमर रख दो, या फिर कुछ भी समय 10 घंटे लो, 20 घंटे लो, कुछ भी कर सॉल्व कर हमें भेजो. हम पक्का करेक्ट कर आपको पर्सनली भेजेंगे यार. ओके, शशांक भैया ने या फिर एडिटर ने क्या एक वीडियो भी डालते, वी आर हेल्पिंग यू, कि लाइक एक बच्चे ने मैथ्स का या फिर कुछ साइंस का क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर भेजा था उन लोगों ने. बहुत खुशी हुई मुझे भी देखकर कि बच्चे ये पार्टिसिपेट कर रहे हैं. सोशल साइंस में भी करो यार. ठीक है, क्या है, 2 पेपर बना के दिया है, उनमें कॉम्पिटेंसी बेस्ड सभी टाइप का क्वेश्चन है, वो सैम्पल पेपर ही है. ठीक है, चलो चलता हूँ. बाय. आई एम योर हिस्ट्री एंड जियोग्राफी मेंटर पवन गौड़ा. This is kind of my official final video, unless the owner or the editor or Shashank asks me to do a new video about some subject or something. तो चलता हूँ. Bye. This is Pavan Gowda, History and Geography. I don't know how many times I've said this. So bye.